सर पीटी में स्कोर नहीं आ पा रहा है मेरा, मुझे नहीं पता मेरे ट्रेनर्स ने मुझे क्या स्ट्रेटजीज बताई हैं और कितना अच्छा मैंने ट्राई किया, एक अटेम्प्ट दिया, दो अटेम्प्ट दिया, तीसरा अटेम्प्ट भी दिया, बट मेरा स्कोर नहीं आ रहा। सर मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप मुझे बता दो कि टिप्स एंड स्ट्रेटजीज कौन सी होती है? ऐसे कई क्वेश्चंस गाइस आपके मन में डेली आते रहते हैं जो लोग पीटी कर रहे हैं। लेट मी टेल यू कि बेसिकली पीटी इट्स जस्ट अ लैंग्वेज एग्जाम। आप लोगों ने उसको ना हवा बना रखा है सीरियसली। लेट मी टेल यू इट्स नथिंग मोर देन जस्ट योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। Hi guys, my name is Ayush Goyal from Ayush PT Elixir. In today's video, I am going to clear each and every doubt that you guys are having related to your English exam. Why you are not getting scores in your PT exam after your second, third, fourth, even the seventh attempt. Like I got many students as well जिन्होंने 7 से 8 बार भी attempt दिया है, but they are not able to score like according to their desire or whatever they want. So in this video, like I'll be letting you know each and everything. So before going ahead, I just request everyone to please subscribe to this channel and do not forget to share this video with your mates so that उनकी भी help हो सके, and also like this video. If you really like the content, please do hit a like button and share this video again. So again, let me tell you before going ahead, we are going to put a lot of content related to your PT exam and any other English exam, especially it's based on PTE. So I'll be posting the videos related to PTE. But yes, if you have any other doubts or any other queries in any other exam related to English like your Duolingo, IELTS, TOEFL, you can definitely ask me. And one more thing that I would like to tell you that हमने यहाँ पर PG सर्विस भी स्टार्ट की है ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ फिजिकल क्लासेस जो आपकी लग रही हैं. I got many students from Rewari side and I'll be sharing their results very soon. And they are getting the training. Also यहाँ पर जो PG की facilities है, we are providing that. So there is no need. अगर आपको टेंशन हो रही है उस चीज की, एग्जाम की, आपने रहने खाने की, आप विचित रहिए, I'll be there for you. आप just आइए, आपका एग्जाम 1 मंथ के अंदर क्लियर हो जाएगा, आपको कोई thousands of money खर्चने की आवश्यकता नहीं है. So let's directly jump onto the video without wasting time and know those basic factors जो आपके ट्रेनर्स शायद आपको कभी नहीं बताएंगे. मैं आपको लिखकर गारंटी दे सकता हूँ, अगर किसी के ट्रेनर ने बताई है तो well and good है, but 90% of the trainers they will not let you know these basic hidden strategies and hidden tips you should know, right? So the very first thing is that like guys, CEFR scale. If you don't know about that, I'll just post another video for that, but for the moment आपको जानना होगा Common European Frame Reference for checking the languages. आपको CEFR scale के बारे में पता होना बहुत जरूरी है because it's a language test. तो वहाँ पर language का level होता है. Like CEFR का जो level है, you can see that यहाँ पर A1, A2, B1, B2 and C1, C2 जो levels हैं, ये आपके बहुत ज्यादा मायने रखते हैं क्योंकि C1, C2 जो आपका level है, that is the advanced English level. B1, B2 is intermediate and A1, A2 is the beginner level. So you should check first of all before giving any exam कि आपका level कहाँ है. Like if you are at like A1, A2 level, then I cannot say कि आप exam दीजिए. हाँ, अगर आपकी requirement 35 या 39 और 40 तक है तो आप उस level को जज करके then exam दे सकते हैं. Because UK VI के कई students हैं, they are just getting their scores and their requirement is like just not more than 45, right? So in that scenario, I can say कि you should go ahead and obviously give your test, but for those who want at least 79 plus or 65 plus, you should not give the exam till the time आपका C1 level नहीं होता है. और उस लेवल को improve कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको live classes में definitely help करूँगा. तो you can join our live classes as well, जो हमारे 2 बैचेस अभी रन कर रहे हैं. That is from like 3 PM to 6 PM के बीच में एक बैच चलता है Indian Standard According, and the second one is from like 9 to 11, लगभग हमारा 9 से 11 के आसपास चलता है. तो you can like directly join into those classes and get your desired scores within 15 or maximum 1 month, like 15 days or maximum 1 month. So right now like CEFR scale आपको जो बताया गया है उसमें जो levels हैं, देखिए एग्जाम की बात करें वहाँ पर टास्क आप कहते हैं, कई स्टूडेंट से मैंने सुना है कि रिपीट सेंटेंसेस सर थोड़ा हार्ड आए थे. हार्ड आने का मतलब क्या होता है कि आपके पास 8 to 10 रिपीट सेंटेंसेस जो आ रहे हैं उसमें तीनों लेवल्स चेक किए जाते हैं. लाइक A1, A2 जो आपका स्टार्टिंग का लेवल होगा, B1, B2 जो आपका थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल है. हर एक लेवल पे आपको डिफरेंट टास्क्स दी जाती हैं. आपको उन लेवल्स को लाइक जज करना है और जज करने के लिए आपके पास जो सिंपलेस्ट टूल्स हैं वो पीटी के अंदर ऑलरेडी इनग्रेन्ड है, लाइक रिपीट सेंटेंसेस, डिक्टेशंस, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए. एंड CEFR स्केल की एक और आपको बात बताना चाहूंगा कि लाइक इस स्केल के अनुसार आप केवल इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं, लाइक अदर लैंग्वेजेस को भी चेक कर सकते हैं बिकॉज़ CEFR इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर लैंग्वेज स्किल. सो A1, A2 अगर आपका लेवल है, आई मीन रिपीट सेंटेंसेस की बात करें, तो यू विल बी गेटिंग शॉर्ट सेंटेंसेस इन दैट. आप उस लेवल को प्रैक्टिस कीजिए. A3 इज द बेस्ट वन एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन माय अदर वीडियोस.
सो वहां पर मैंने बताया कि शॉर्ट सेंटेंसेस भी आप वहां से चेक कर सकते हैं। आपको सम लाइक सिंपल 5 to 7 वर्ड्स का जो सेंटेंस मिलेगा उसको चेक कीजिए, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली A1 and A2। और जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं दैट गो अप टू B1 and B2, समटाइम्स लाइक आपका जो लेवल होता है दैट कैन गो अप टू C1 and C2। C1 C2 में आपको और लेवल हार्ड आ जाता है जिसके अंदर शायद आपके वर्ड्स जो है मे बी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं और सेंटेंस की लेंथ लंबी हो सकती है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड द सेकंड थिंग दैट आई शुड लेट यू नो, इट्स अबाउट योर you can say that tasks that you should be following, because what we do is highlight incorrect words। हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वो इजी लगता है। आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए दैट इज योर राइट फ्रॉम डिक्टेशंस, राइट। राइट फ्रॉम डिक्टेशंस आर द ओनली यू कैन से द टास्क्स जिसके अंदर पूरी टास्क में आप कह सकते हैं कि स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग आप कवर कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप एक डिक्टेशन को सुनिए, लिसन टू अ डिक्टेशन फर्स्ट, देन ऑब्वियसली इट्स योर लिसनिंग पार्ट। जब आप उसको टाइप करते हैं इट बिकम्स योर राइटिंग। जब आपकी राइटिंग क्लियर हो जाती है उसमें ग्रामर चेक कीजिए, स्पेलिंग चेक कीजिए, वोकैब चेक कीजिए। जब आप उसको रीड करेंगे इट बिकम्स योर काइंड ऑफ अ रीड अलाउड, जिसमें आपको सिंपल एक लाइन को रीड करना है। अगर आप उस छोटी लाइन को विदाउट लाइक ब्रेक आप बोल पाते हैं, जैसे मैंने रीड अलाउड में एक स्ट्रेटजी बताई थी कि फुल स्टॉप पे पॉज लेना है, तो आपका डिक्टेशन जो आएगी हार्डली 10 to 12 वर्ड्स की आती है। तो अगर आप उसको बिना रुके बोल सकते हैं तो ऑब्वियसली आपके रिपीट सेंटेंसेस और रीड अलाउड्स में भी इंप्रूवमेंट होने वाली है, बिकॉज़ दे ऑल आर कनेक्टेड। लेट मी टेल यू, इट्स नॉट अ डिफरेंट थिंग कि आप रिपीट सेंटेंसेस, डिक्टेशंस, रीड अलाउड्स को अलग-अलग माने। दे ऑल आर बेस्ड ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज गाइस, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज को समझिए, बेसिक्स को क्लियर कीजिए, ग्रामर की क्लासेस क्लियर कीजिए, एंड आई कैन गारंटी कि मैं आपको 15 से 20 दिन में आपकी ग्रामर क्लियर कर सकता हूं। इफ यू रियली वांट द ग्रामर क्लासेस एज वेल, यू कैन डेफिनेटली जॉइन देम। आप पीटी के अलावा ग्रामर क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैं अगर आपको बात करूं, यहाँ पर हमारे पास जो मेन चीज है डिक्टेशंस के अंदर दैट इज योर रीडिंग सेक्शन एज वेल, क्योंकि आप उसको आंसर को रीड करने के बाद स्पीक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट कवर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड बी फॉलोइंग योर लाइक ऑफ कोर्स लाइक आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, बिकॉज़ आपके ट्रेनर्स आपको कहते हैं कि आंसर शॉर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस आर द ओनली वे टू इंप्रूव योर लिसनिंग स्किल्स। नो डाउट दे कम फॉर जस्ट 4 to 5 मार्क्स, बट लेट मी टेल यू, एक तो 4 से 5 नंबर कम नहीं होते, बट बेशक कम है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी लिसनिंग इंप्रूव हो रही है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप उस सेंटेंस को समझ जाएंगे, क्वेश्चन को समझना स्टार्ट कर देंगे। और जब आपने क्वेश्चन समझना स्टार्ट कर दिया, आई कैन बेट कि आप रिपीट सेंटेंसेस में कभी भी मार नहीं खाएंगे, बिकॉज़ रिपीट सेंटेंसेस आर टोटली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। ये जो स्ट्रेटजीज मैंने बताई हैं लाइक विजुअलाइजेशन फर्स्ट टेक्निक जो आपकी थी, सेकंड वन लाइक इनिशियल एड्रेस टेक्निक, देन फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस और एक चंक्स टेक्निक, ऑलरेडी आपकी वीडियोस जो है उस पे पोस्टेड है, यू कैन चेक देम। बट अगर उसके अंदर आपको डाउट लगता है कि नहीं, तो सबसे पहले आपका जो है विजुअलाइजेशन ही काम आती है। आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। अगर आपको वो समझ आता है तो आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं। तो आंसर शॉर्ट क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए, आप अपने जो डिक्टेशंस हैं उसको ज्यादा से ज्यादा कीजिए डेली, मतलब उसको रटिए मत, क्रैम मत कीजिए। जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन द वर्ड्स एंड द ग्रामर पार्ट सो दैट यू कैन गेट टू नो कि वोकैबुलरी एंड स्पेलिंग्स को कैसे लिखा जाता है। बी के बाद कौन सी फॉर्म आती है, एस या एस कहां लगता है, कहां नहीं लगता है, सबसे ज्यादा दिक्कत आपको वहीं पर आने वाली है, राइट। और सबसे बड़ी बात कि वोकैबुलरी प्रैक्टिस, आपकी वोकैब इंप्रूव होना बहुत जरूरी है गाइस। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन अनदर वीडियो कि आपका सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है दैट कम्स ओनली इन योर वोकैबुलरी। सपोज आप रीड अलाउड पढ़ रहे हैं और आप अटक जाते हैं बीच में। अटकते क्यों है? क्योंकि हमारे पास वहां पर कोई ऐसा वर्ड आ गया जो समझ नहीं आया, तो वो वर्ड इज इक्वल टू वोकैबुलरी। रिपीट सेंटेंस में आपको कोई वर्ड नहीं समझ आया, दैट इज आल्सो इक्वल टू वोकैबुलरी। आप अगर बात करें स्पोकन टेक्स्ट के अंदर आपको स्पेलिंग नहीं आ रही है या डिक्टेशन में कोई वर्ड नहीं आया, दैट इज आल्सो वोकैबुलरी पार्ट, राइट। तो आपको वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए अकॉर्डिंग टू मी यू शुड गो ऑन टू द एपीने का जो आप पेज देख पा रहे हैं, इसके होम पेज पर जाकर वोकैब बुक्स में क्लियर करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको वहां पर सभी वोकैब्स मिलेंगी। दैट शुड बी द रीडिंग एंड द लिसनिंग मोड। अगर रीडिंग मोड की बात करें, वहां से जस्ट आप रीड कर सकते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट द लिसनिंग मोड, ऑब्वियसली लिसनिंग मोड के अंदर आपके पास पूरी सुनने वाली वोकैब आ जाती है, जहां पर आप उसको सुनते हैं एंड यू जस्ट हैव टू टाइप दैट वोकैब। आपकी स्पेलिंग्स इंप्रूव हो रही है, लिसनिंग इंप्रूव हो रही है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर गाइस। जैसे अगर आप बात करें, कोई बच्चा अमेरिका के अंदर पैदा होता है और वो इंडियन स्टूडेंट है, तो वो इंग्लिश बोलना सीखेगा, ना कि वो हिंदी बोलना सीखेगा, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट बन चुका है। और एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज लिसनिंग। अगर आप सुनेंगे इंग्लिश तो इंग्लिश ही बोलेंगे, तो ट्राई कीजिए कि लिसनिंग जितना हो सके उतना ज्यादा फोकस कीजिए। सो अप टू नाउ आई हैव टोल्ड यू कि सीईएफ पार्ट स्केल आपने कैसे जज करना है। ऑब्वियसली यू कैन टेक क्लासेस, मैं आपको डीपली बताऊंगा। डिक्टेशंस को फॉलो कीजिए, जितना ज्यादा हो सके डिक्टेशंस कीजिए, और जब तक आपकी डिक्टेशन ठीक ना हो जाए, आपको क्लियर ना हो जाए डाउट, नेक्स्ट डिक्टेशन पे मत जाइएगा। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस आप डेली जितने भी हो सके 50-100 कीजिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए, सो दैट यू कैन रिपीट सेंटेंसेस भी आपके इंप्रूव हो सके।
एंड उसके बाद जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज सिंगल आंसर्स हैं और चूज मल्टीपल आंसर्स, मोस्टली लाइक इफ आई टॉक अबाउट द रीडिंग सेक्शन, तो वहां पर आपने ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज रीडिंग के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, लेट मी टेल यू गाइस, they are just for 1 or 2 marks, but I am not focusing on एक या दो नंबर, but I am just focusing on the gist of the passage. वहां से आपने पैसेज को समझना स्टार्ट कर दिया तो गाइस आई कैन गारंटी आपका रिटन टेक्स्ट भी इंप्रूव हो जाएगा, आपकी स्पोकन टेक्स्ट भी इंप्रूव हो जाएगी, आपको समरीज लिखनी आ जाएंगी, आपको हाईलाइट करेक्ट समरी में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, रीडिंग अंडरस्टैंड होने लग जाएगी। ये मतलब ये लगा के देखिए कि एक प्रूवन टेक्निक है जो मैंने खुद के ऊपर अप्लाई की है। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैं सिर्फ वही चीज बताता हूं जो मेरे लिए वर्क करती है। जो मेरा स्कोर 82 आया है, एज यू कैन चेक, ये सिर्फ इन्हीं स्ट्रेटजीज की वजह से आया है कि मैंने अपने अंदर क्या चेंजेस लिए थे उस टाइम पर। लाइक रीड अलाउड्स के अंदर थोड़ा सा चेंज लेकर आया था, या रीडिंग के अंदर मैंने थोड़ा फोकस किया, तो वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ट्राई कीजिए कि आप इन चीजों को फॉलो कीजिए, ट्राई टू नोट देम डाउन इन योर नोटबुक, और लाइक आप डेली के 5 to 10 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज सिंगल आंसर्स के भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल आंसर्स के क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे रीडिंग को इंप्रूव करने। रीडिंग के लिए आप रीड अलाउड्स को जितना पढ़ सकते हैं, सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, वन लाइन स्ट्रेटजी जो है आपके ट्रेनर्स ने बताई है, नो डाउट फॉलो कीजिए, बट मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है, लंग्स के अंदर को एयर फिल कीजिए और धीरे-धीरे एक्सहेल कीजिए। Repeat sentences, dictations, read alouds, reading writing blanks, as you know that these are more important, but ये नहीं हो सकते अगर आप रीडिंग के अंदर मल्टीपल चॉइस नहीं करेंगे, लिसनिंग की डिक्टेशंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हाईलाइटिंग करेक्ट वर्ड्स को भी कीजिए। I'm not saying कि सारा दिन इसको ही कीजिए, but yes you have like a little bit of time. I'll be posting very soon एक कंप्लीट आप कह सकते हैं टाइम टेबल में बनाने वाला हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम 15 दिन में या 30 दिन के अंदर अंदर है, या आई मीन 1 मंथ के अंदर अंदर है, या जो नया भी स्टार्ट करता है पीटी को, क्योंकि पीटी को जानना इट्स नॉट अ बिग डील। आप शायद 5 या 6 दिन में पीटी को जान जाएंगे कि पीटी क्या होती है, टास्क्स क्या होती है, मार्किंग्स क्या होती है, बट आपको जो चीज नहीं पता लगने वाली है गाइस, वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव होनी जरूरी है, ग्रामर आपको नहीं आएगी, रीडिंग को आपको मतलब बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आप खुद सोचिए, आप रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेट मी टेल यू कि रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स तो वैसे ही हमारे गलत हो रहे हैं, और जो हमारी चीज ठीक होने वाली है हम उसको प्रैक्टिस ही नहीं करते, लाइक रीडिंग जहां से इंप्रूवमेंट आने वाली है। तो मेक श्योर कि आप इन चीजों को मत छोड़े। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू एंड इंप्रूव योर इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ पीटीई। सो आज की वीडियो के लिए मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, जस्ट दीस वर सम ऑफ द टिप्स दैट यू शुड बी फॉलोइंग। अगेन एक बार बता देता हूं, CEFR स्केल हमेशा अपने लेवल जो है उसको चेक कीजिए, अपने ट्रेनर्स को पूछिए कि CEFR स्केल क्या है मेरा, क्योंकि कई इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं मतलब बिना मतलब कि 3 महीने के लिए स्टूडेंट्स को बुक कर लेते हैं, चाहे उसका लेवल 15 दिन का भी हो, फिर भी 3 महीने के लिए आपको बिठा लेते हैं, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू मी। सेकंड ऑफ ऑल, यू शुड बी डूइंग योर राइट फ्रॉम डिक्टेशंस एज मच एज पॉसिबल, multiple choice, choose single and the more than one for your the listening section, and for the reading blanks you also should be going for reading multiple choice, single and the more than one, or sometimes you can also follow the techniques for grammar based on your reorder paragraphs or reading के blanks के लिए। Apart from that, answer short questions are the very important thing to improve your listening section। और साथ साथ आप अपने रीड अलाउड्स के ऊपर भी फोकस कीजिए, दिन के एटलीस्ट 30 to 40 रीड अलाउड्स को रीड कीजिए। APUni का सब्सक्रिप्शन लीजिए, उसका जो AI है दैट इज approximately equivalent to your Pearson. I'm not saying equal है, but equivalent, it's similar to that. If you are getting 65 score in your speaking in the APUni test, then I can guarantee कि आपको 60 score तो minimum कहीं नहीं जाएगा। So make sure कि आप इन चीजों को follow करें, and if still you have any doubt in any of the sections, I am there as Ayush PT Elixir and will definitely help you out as other students are getting the training. Soon I'll be posting some recorded videos like online recording sessions जो हम students का class लगा रहे हैं। So again, I would recommend everyone to please subscribe to this channel, hit the like button as well. Like अगर आपको कोई भी वीडियोस के अंदर नहीं पता लग रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। Again, हमारी जो क्लासेस हैं अभी लाइक 10 नवंबर तक जो है ऑफर चल रहा है, दैट इज 10% ऑफ। जो फीस मेरी मंथली रहेगी दैट इज 5000 रुपीज, उसके ऊपर आपको 10% ऑफ माई 4500 में आपको क्लासेस मिलने वाली है, और 1 मंथ में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम क्लियर होना हो बट आपके डाउट्स डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, यू कैन आस्क मी एनी नंबर ऑफ टाइम्स इफ यू वांट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई लेट यू नो अगेन कि हमारा जो पीजी का सिस्टम है, जो हमने पेइंग गेस्ट का सिस्टम भी यहाँ पर ऑन किया है, आप यहाँ पर आए, फिजिकल क्लासेस लें, आपके रहने की खाने की सुविधा भी हमने की है उसके अंदर लाडवा कुरुक्षेत्रा के अंदर, जहां पर आपको अपनी फिजिकल क्लासेस मिल रही हैं, और वो भी उसी लाइक कोर्स के अंदर जो शायद आपको 1 मंथ की क्लासेस में मिलती है। बट अगर आप दिल्ली चंडीगढ़ जैसे एरियाज में जाएंगे वहां शायद आपको वो चीजें ना मिले और बहुत ज्यादा हाईली पेड होंगी चीजें, और साथ साथ आपका स्कोर की भी मैं नहीं कह सकता, यहाँ मैं गारंटी लेकर चलूंगा। तो मेक श्योर आप इन चीजों को फॉलो करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।